Hello everyone. Jai Hind all of you. Students, today we will start the poem number 5, and this poem is the last poem of your poetry part of class 11th English. Then afterwards your poetry part will be completed. The name of the poem is Father to Son, which is written by Elizabeth Jennings. Now let us come to the poet here. Elizabeth Jennings was born on 18th July 1926 in Boston, and she was died on 26th October 2001. She was an English poet and she wrote many poems. Now let us come to the theme of the poem, central idea of the poem. Here the poem, Father to Son, talks about a fairly universal experience. जब बच्चे छोटे होते हैं तो फादर यूजुअली अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, और वही चीज बाद में होती है किनके साथ? फादर के साथ. When the father grows older and has free time, his son gets involved in his life and has no time for his old father. And this cycle is universal. This poem describes the troubled relationship between a father and his son. The poem talks about generation gap between the father and the son. क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप बन जाता है. And voices the father's pain and helplessness in failing to understand his child. The father wants the same kind of bond with his son. फादर चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही बॉन्डिंग फिर से हो जाए. कौन सी? As he had when the son was a little child. बिल्कुल वैसी बॉन्डिंग चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि अब बेटा बड़ा हो चुका है. वो अपने काम में इतना बिजी हो गया है, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास समय नहीं है. But now silence is what surrounds their relationship and there is a complete lack of communication between them. अब क्या हो गया है? Complete lack of communication. बातचीत यूं समझो ना के बराबर ही है. Though they have lived in the same house for years, चाहे वो लोग एक साथ एक घर में कई सालों तक रहे हैं, they behave as strangers. लेकिन तब भी वो strangers की तरह behave करते हैं. As there is still love between both of them, they try to find out a way to resolve their difference, but that seems futile. Poet says that fathers and sons all over the world should learn to live on the same globe and same land. पोएट कह रही हैं ये बात कि फादर, जितने भी फादर्स हैं, जितने भी सन्स हैं पूरी दुनिया में, उनको ये चाहिए, क्या चाहिए? ये सीखना चाहिए, टू लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड. द पोएम टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, that is lack of communication and understanding. So here I have given you the central idea of the poem. Come to the detailed explanation of the first two paragraphs of the poem. In the first stanza, the poet shares his feelings with his son. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. जैसे कि मैंने सेंट्रल आइडिया में भी आपको बताया था कि वो सालों से एक साथ रह चुके हैं एक ही घर में, लेकिन तब भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. तो यहाँ पे आई कौन है? यहाँ फादर है. आप पोएट मत समझना, फादर की बात हो रही है. फादर कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पाता. चाहे हम लोग, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, चाहे हम लोग एक साथ रह चुके हैं, नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों तक हम एक घर में रहे हैं, एक छत के नीचे रहे हैं, तब भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं. मैं नहीं समझ पाया. फादर कह रहे हैं अपने बच्चे के लिए. आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. किसके बारे में? इस बच्चे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता. He says that although they both had lived together in the same house for many years, yet he does not understand.
He does not know anything about his son, his likes and dislikes. So try to build up a relationship from how he was when small. तो क्या कर रहे हैं फादर? He tried to build up a relationship. कोशिश में लगे हैं कि ये जो बॉन्डिंग है हमारी एक दूसरे के साथ वो फिर से अच्छी हो जाए. So he tried to build up a relationship with him from the time when he was small. His son has changed as he has grown up. उसका बेटा तो अब बदल चुका है क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है. Yet have I killed the seed I spent or sown it when the land is his mine, none of mine. अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है क्या इसको मैंने खो दिया? Have I killed? मैंने बर्बाद कर दिया. Killed means बर्बाद कर दिया है. किसको बर्बाद कर दिया है? उस सीड को. वो सीड यहाँ बेटे के लिए यूज किया जा रहा है. उस बेटे को द सीड यानी मैंने शायद हो सकता है कि इसे किसी ऐसी जगह गलती से रख दिया है जो उसका अपना नहीं है. I spent or sown it when the land is his, none of mine. जो लैंड जो था वो उसका अपना नहीं है. जो थ्रेड है, धागा जो है, एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, जोड़ने वाली जो बॉन्डिंग होती है, धागा जो होता है वो कहीं खो गया है. ऐसा लगता है कि जैसे इस रिलेशन को वो कहीं गंवा बैठा है. या तो उसने इस सीड को बर्बाद कर दिया है, किल्ड कर दिया है, या इसे किसी ऐसी जगह गलती से रख दिया है जो लैंड उसका अपना नहीं है. नन ऑफ माइन. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों जो बात करते हैं अजनबियों की तरह बात करते हैं. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. अब फादर एडमिट कर रहे हैं, फादर एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को दैट द चाइल्ड्स फिजिकल शेप इज अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स. बोले ये बनाया हुआ तो मेरा ही है, हूबहू मेरी ही शक्ल है. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन. जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही बनाया है मैंने इसको. इज अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स बट देयर इंटरेस्ट डिफर. लेकिन उनके जो इंटरेस्ट है वो अलग हो चुके हैं. दोनों की दिलचस्पी जो है वो अलग अलग है. वो कुछ चाहते हैं, ये कुछ चाहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जनरेशन गैप है. एक बूढ़े हो चुके हैं, एक यंग हो चुका है. He cannot share what the son loves, yet what he loves I cannot share. The poet यहाँ पे जो फादर है वो क्या कह रहे हैं? He cannot share what the son loves. जो उसके बेटे को पसंद है वह उसे ना पसंद है. उन चीजों में वह कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है. I cannot share. तो यहाँ पर उस फादर की फीलिंग्स बताई गई हैं जो एक सन के लिए होती हैं. और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये साइकिल है जो चलती रहेगी हमेशा. फादर बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं. और जब बच्चा छोटा होता है फादर अपने काम में लगे रहते हैं और उनके पास समय नहीं होता है. तो इस तरीके से यहाँ पोएट ने हमको एक फादर और सन के रिलेशनशिप जो जुड़ने चाहिए उसके बारे में बताया है. वो चाहते हैं कि ये बॉन्डिंग फिर से बन जाए. Here I have explained you the 2 paragraphs. In the next lecture, we will go through the next 2 paragraphs again. Come to the literary devices. Here is simile. Number 1 is simile. Why it is simile here? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. क्योंकि वो बता रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी ही डिजाइन का है. Alliteration. Second one, alliteration. S sound is repeating here. Seed, spent, sown. S sound. Metaphor. Again, the comparison without using like and as. 7 and 8 line. It is metaphor. Comparison है, the seed I spent or sown it when the land is his, none of mine. So now
The explanation is completed. I hope you understood it. Thank you, all of you.